Hello and good afternoon to our yet another session of online trainings. और जो हमारी आज की training है, it's a very basic training, but I believe that it's one of the most important trainings as well. जैसा कि आपको already पता है that today मैंने actually plan किया था Instagram for business, where I can tell you about hashtags you have to use or how to use Instagram in general, or give you certain ideas about using Instagram. But considering the lockdown, considering जो आजकल का scenario है because of the corona pandemic, it's very important that we focus on new ways to prospect and we figure out कि इस time में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें business आ सकता है, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ value दे पाएं. That's very important. आप देखोगे कि आपके साथ एक स्पेशल वेबिनार होगा, उसका भी अनाउंसमेंट इस बार की कॉस मीटिंग में होगा. But other than that, like, it's very important that we understand that we are going through some terrible times, which is like very, very true. But you should not use this as an opportunity कि आप products को लेके, आप opportunity को लेके बहुत बहुत false claim करो. Yesterday as well I shared that post in the group जहाँ पे किसी specific leader ने कोरोना से कहा था कि like our hand washes are very effective in getting rid of corona. It's not allowed at all. Why? Because in today's time, if you are just pushing it, if you are appearing कि आप actually capitalize कर रहे हो इस चीज को लेके, people will not find you ethical. They will not treat you as a nice person, right? So the social media strategy as of now has to be that you are being there with your utmost honesty and integrity, and you talk about the business, you talk about the products, you talk about the wellness. इससे मुझे याद आया, I might also create one specific training कि आप डिजिटल और वेलनेस को एक कॉम्बिनेशन करके कैसे वेलनेस को प्रमोट कर सकते हो during this quarantine. And I think that is also the need of an hour, because wellness is something जहाँ पे आपका focus होना चाहिए, and live streaming is something जहाँ पे आपका focus होना चाहिए. Preferably for prospecting and recruitment, live streaming is the next big thing. और हमने बहुत बार बात करी है क्यों important है live जाना, आपको live क्यों जाना है. और आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे लोग already live जा रहे हैं, and there is lot of things you can do while broadcasting live streaming. और उसको लेके भी आपको हम अच्छी ट्रेनिंग देंगे और अच्छे से अपडेट करेंगे कि आप लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आप चूज कर सकते हैं, कैसे इनवाइट्स आप बना सकते हैं. So please do not worry about that. But it's very important that we come onto this platform all together and we use it ethically, और हम एक responsible person की तरह use करें, so that हम अच्छी consultation दे रहे हैं लोगों को. We are not making false claims. We are not benefiting on the tragedy. That is very, very wrong. It should not appear like that. Okay. Now, आज की training, honestly, it's very basic training, but it is the basic and basis for other things which we build upon going forward. Because prospecting, you have to equally be enthusiastic about it कि आप फिर ट्रेनिंग के बाद अपना एक्शन कितना लेते हो. अगर हम आज को कोई टास्क देते हैं, you have to perform those tasks and be your own critic, right? So जब हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अभी क्वारंटीन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, एवरीवन इज होम बाउंड, और अभी हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. वी कैन नॉट प्रोस्पेक्ट ऑफलाइन, राइट? ऑफलाइन इज totally out of picture as of now, at least for 21 days or 1 month. Let's be optimistic, right? But still, like, if ek mahina, it does not mean that you stop doing business, you stop living, right? The show must go on. It will always go on. That's why it's very important that we adopt new tools, we adopt new techniques, और देखें कि हम अपनी prospecting को किस किस तरीके से increase कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं. तो जब हम online prospecting की बात करते हैं, it's very simple and it's very complicated at the same time. Complicated why? Because हम prospecting को limit रखते हैं सिर्फ एक चीज या दो चीज तक. That's not it. When I talk about online prospecting, आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं. You have your email marketing, आपके पास search engine marketing है, और आपके पास social media marketing है. These are your 3 primary drivers for your online prospecting.
नाउ द फर्स्ट थिंग इज ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग बहुत ट्रेडिशनल है. बहुत सारे लोग ईमेल मार्केटिंग करते थे. लॉट ऑफ बिजनेसेस डू ईमेल मार्केटिंग. लेकिन ऑनेस्टली आज के टाइम में कितने लोग एक्टिवली अपना ईमेल चेक करते हैं? बहुत कम लोग. ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो सोशल मीडिया चेक करें, अपना फेसबुक देखें, अपना इंस्टाग्राम देखें, रादर देन दे गो टू देयर ईमेल. बट स्टिल ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स सेटअप के लिए. ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रिमार्केटिंग एंड टारगेटिंग के लिए. बट फॉर अस आई डोंट थिंक हमें कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ईमेल मार्केटिंग से, कंसिडरिंग हमारा सेटअप कैसा है. इट्स वेरी इफेक्टिव, बट कंसिडरिंग करंट सिनेरियोस ईमेल मार्केटिंग इज नॉट समथिंग जहां से मुझे ज्यादा बिजनेस आएगा. सर्च इंजन मार्केटिंग डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो सर्च इंजन मार्केटिंग है एक्चुअली. यानी आप ऑनलाइन कंपोनेंट को कितना यूज करते हो. अभी जब हम डिजिटल लीडर्स की बात करते हैं तो लॉट ऑफ द लीडर्स दे आर वेरी restricted to, they are only doing business on social media. If you look at it, Google या ऑनलाइन मार्केटिंग को बहुत कम लोग इफेक्टिवली यूज करते हैं. तो व्हेन आई टॉक अबाउट सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी आपके गूगल एडवर्ड्स हो गए, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, आपका पे पर क्लिक हो गया, then you know there are lot of other things like off page SEO, on page SEO. ये कैसी चीजें आप करके अपने लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ढूंढते हो. बट अगेन दिस इज टेक्निकल, यू नीड अ डिजिटल एक्सपर्ट्स हेल्प. इसमें आपको पास वेबसाइट होनी चाहिए, आपका अच्छा ब्लॉग होना चाहिए. देन देयर इज नो लिमिट कि आप कितना प्रोस्पेक्ट कर सकते हो और कहां कहां प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं. बट देन फाइनली जो आजकल ट्रेंड में है, जो आजकल बहुत बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग. और आज के टाइम में अगर आप देखोगे, lot of people are comfortable working on social media, using it as a platform to create business, to network with people, to make friends, right? आजकल social media is the primary source to market your business and your services. तो जब मैं social media की बात करता हूं, social media में I have plethora of options. I have my Facebook, I have my Instagram, I have my YouTube, I have my LinkedIn. Now, if you are a serial network marketer, आप क्या करोगे? आपके पास एक प्लान होगा for all these 4 channels, and you will have figured it out. Okay, Facebook से मुझे क्या कर चाहिए, मुझे Instagram से क्या चाहिए, मुझे YouTube से क्या चाहिए, मुझे LinkedIn से क्या चाहिए. And जहां पे see we have lot of other platforms as well, but these are some of the major social media platforms. अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे दे दूं, दैट विल बी कि अगर आप फेसबुक प्लान करते हो, आपका जो फेसबुक का प्लान होगा और जो आपका लिंक्डइन का प्लान होगा, क्या वो सेम होगा? इट कैन नेवर बी द सेम. सिमिलरली जो आपने यूट्यूब के लिए कंटेंट सोचा होगा और जो आपने इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट सोचा होगा, अगेन इट कैन नॉट बी द सेम. सो द थिंग आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपको अपना बिजनेस कहां कहां पे सेटअप करना है, where all you intend to promote your business. Okay, तो फॉर एग्जांपल फेसबुक है, तो पहले फेसबुक क्या है? फेसबुक इज अ सोशल मीडिया नेटवर्क. इट्स इन फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्क्स. और इंडिया की बात करें, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फेसबुक यूजिंग कंट्रीज, एंड हमारे पास 242 मंथली एक्टिव यूजर्स हैं पर मंथ. और फेसबुक की जो ब्यूटी है दैट इट वर्क्स फॉर एवरीवन. डज नॉट मैटर कि आप एक हाउसवाइफ हो, आप एक होम मेकर हो, आप एक वर्किंग मॉम हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक रिटायर्ड पीपल हो, फेसबुक वर्क्स फॉर एवरीवन, राइट? एंड देन फेसबुक में एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, यू हैव द प्रोविजन ऑफ हैविंग प्रोफाइल. आपके पास पेज है, आपके पास ग्रुप्स हैं, आपके पास एडवर्टीजमेंट्स है. और अगर आप सिर्फ फेसबुक को सही से यूज करोगे, सारा प्रोस्पेक्टिंग वहां से आ जाएगा. Then you see you have your Instagram. Instagram again one of the fastest growing social media networks. And Instagram किन के लिए वर्क करेगा? अगर आपको काफी अच्छा लगता है कैमरा हाथ में लेना, आप अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करते हो, आप अच्छी अच्छी कैप्शंस देते हो विट्टी से, एंड यू हैव टाइम. Instagram is something जिसमें टाइम चाहिए. Instagram is not something कि आपने Facebook की तरह बीच बीच में पोस्ट करते जाए और यू कैन हैव अ नाइस फॉलोइंग और यू कैन हैव अ रियली स्ट्रांग ब्रांड देयर. नो,
इंस्टाग्राम में आपको 3-4 महीना स्ट्रेच में काम करना है, लगातार काम किए जाना है कंटिन्यूअसली। आपका 3-4 महीने में ही 5 से 10,000 फॉलोवर्स आ जाएंगे, प्रोवाइडेड यू आर जस्ट स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन इंस्टाग्राम। जब मैं यूट्यूब की बात करूं, यूट्यूब के लिए नॉट नेसेसरी, राइट? यूट्यूब में आपको सिर्फ 2 वीडियो डालने हैं वीक में, और यूट्यूब के लिए थर्सडे एंड वीकेंड, सैटरडे और संडे, दीज आर द बेस्ट डे जब आपको अपना कंटेंट डालना होता है। अगेन फिर भी आपको यूट्यूब के लिए प्लान चाहिए कि ये 2 टॉपिक जाएंगे इस वीक में, ये 2 टॉपिक जाएंगे अगले वीक में। एंड अगेन इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होगा। अगर आपने पहले ही लाइव किए होते तो आज आपके पास एक अच्छा पूरा प्लान होता 21 लॉकडाउन का, कि आप इन 21 दिनों में इतनी बार लाइव स्ट्रीम करेंगे और ये टॉपिक करेंगे आप। मैं आपको कुछ आइडियाज भी दूंगा अपनी ट्रेनिंग में, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट स्टिल इट्स नॉट लेट। बहुत सही टाइम है अगर आप पहली बार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहे हो, या आप एक सीजन डिजिटल लीडर हो और आप 1-2 साल से ट्राई कर रहे हो। यू नीड टू वेंचर एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू। ओके, सो लिंक्डइन अगेन, जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन भी आपकी फेसबुक की तरह है। लिंक्डइन इज अ सोशल मीडिया नेटवर्क एज वेल, लेकिन ओनली डिफरेंस इज दैट लिंक्डइन इज अ सोशल मीडिया नेटवर्क फॉर प्रोफेशनल्स। अब जैसे फेसबुक प्रोफाइल पे आपको रोज बात करनी है, पोस्ट एवरी डे, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में, अपने रूटीन के बारे में, अपनी बिजनेस के बारे में, अपनी टीम के बारे में। लेकिन लिंक्डइन पे आप अगर वीकली 2 पोस्ट भी करोगे, वीकली 3 पोस्ट भी करोगे, वो काफी है। सो दैट इज वाई सबसे पहले जब हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द चैनल फर्स्ट, कि मैं कहां प्रोस्पेक्टिंग करूंगा। अगर मुझे चैनल के बारे में आइडिया ही नहीं है, अगर मुझे चैनल के डायनामिक्स पता ही नहीं है, तो मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी वहां पे? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? आई माइट फेस लॉट ऑफ इश्यूज। इट्स नॉट दैट लाइक कि मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स आई विल गेट रिजल्ट्स, बट मुझे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मुझे ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, हम प्रोस्पेक्टिंग को लेके कुछ और ट्रेनिंग्स करेंगे, जहां पे मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे मैकेनिज्म या अच्छे अच्छे टिप्स बता दूंगा कि कैप्शन किस तरीके के वर्क करते हैं, कौन कौन से चैनल पे क्या क्या टाइम है अच्छा कंटेंट पोस्ट करने का। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे सकता हूं कि जो आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए। एंड एडवर्टीजमेंट इज समथिंग जो बहुत क्रिटिकल रहेगी इस पूरे टाइम में, और जितना जल्दी हो सके आप सबको एक एडवर्टीजमेंट मॉड्यूल चलाने हैं, और मैं आपको एडवर्टीजमेंट पे भी ट्रेन करूंगा, और मैं आपको दिखा दूंगा कि आप मैसेज और लीड जनरेशन को लेके किस किस तरीके के ऐड कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको सैंपल कैप्शंस भी दूंगा, और मैं दिखा भी दूंगा आपको कि आप किस तरीके के क्रिएटिव्स भी यूज कर सकते हैं। एंड एवरीवन कैन डू इट। ओके, नाउ आज हम सिर्फ फेसबुक पे फोकस करेंगे, कंसिडरिंग इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्क्स। नाउ फेसबुक हैज 4 different features which we again and again talk about. The first thing is Facebook profile. Now प्रोफाइल पे आपको क्या करना है? प्रोफाइल पे आपको आइडियली डेली पोस्टिंग करनी है, और वो पोस्टिंग क्या होनी चाहिए? इट कैन बी एनीथिंग। ओके, आप अपनी फैमिली के बारे में बात करो, आप अपने रूटीन की बात करो, आप अपने हॉबीज की बात करो, आप थ्रो बैक पिक्चर्स की बात करो, जब आपको पहली बार स्टेज पे बुलाया गया था, जब आप बिजनेस ट्रिप के लिए वहां पे ट्रैवल किया था। देयर इज नो लिमिट कि आप क्या चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हो अपने प्रोफाइल पे। बट मोस्टली आपको अगर रिक्रूटमेंट चाहिए, अगर आपको एक रिकॉग्निशन चाहिए कि लोग आपको आइडेंटिफाई करें, आपका जो ज्यादा कंटेंट है, it should be about business, it should be about your teams, it should be about empowerment. बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो सिर्फ कैंडी क्रश वहां पे शेयर करते रहते हैं, वो इधर उधर की गेम्स खेलते हैं, उन गेम्स के बारे में वहां पे बात करते हैं। मैंने बहुत बार ये भी कहा है कि लॉट ऑफ पीपल वो अपने टैग्स ओपन रखते हैं, फिर उनको लोग स्टूपिड पोस्ट में, मीम्स में टैग करते रहते हैं, और वही दिखता है उनकी प्रोफाइल पे। एंड बहुत सारे लोग, अगेन आई विल मेंशन इट, लाइक पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं अपने प्रोफाइल पे, एंड दैट इज नॉट समथिंग विच यू शुड बी डूइंग ऑल टुगेदर। व्हाई? क्योंकि आप एक नेटवर्क मार्केटर हो। यू आर नॉट अ सोशल मीडिया ट्रोल कि आप बस एक दूसरे को यू जस्ट ट्राई टू पुल डाउन, या आप हमेशा जोक ही शेयर करते हो। नहीं,
बीच में आपने कोई अच्छा सा जोक शेयर किया, विच इज ऑल राइट, ह्यूमर इज गुड, बट इट कैन नॉट बी शेयरिंग जोक्स, शेयरिंग मीम्स ऑल द टाइम, राइट? वाई? क्योंकि कल जब आप एड चलाओगे, कल जब आप प्रोस्पेक्टिंग शुरू करोगे, जब वो लोग आपके प्रोफाइल पे आएंगे, वहां पे देखेंगे अरे आप तो सिर्फ जोक शेयर करते हो, या आप तो सिर्फ ऑरिफ्लेम के ही पोस्ट शेयर करते हो। जब वो आपके बारे में, आपका कंटेंट नहीं देखेंगे, आपकी एस्पिरेशन, आपके ड्रीम्स, इन चीजों के बारे में नहीं जानेंगे, वो आपके साथ कैसे कनेक्ट होंगे, वो आपके साथ कैसे रिलेट करेंगे? देयर इज नो वे। एंड द ओनली वे टू रिक्रूट बेटर इज कि हम प्रोस्पेक्टिंग को सही से करें, ओके? एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लो, एंड इट्स नॉट मैंडेटरी दैट दीज क्वेश्चंस हैव टू बी अबाउट बिजनेस, दीज क्वेश्चंस हैव टू बी अबाउट प्रोडक्ट्स ओनली, नहीं। अभी यू कैन जस्ट सिंपली गो लाइव एंड आस्क पीपल, फॉर एग्जांपल, आप क्वारंटीन में आपने कोई नई चीज क्या डिस्कवर करी अपने बारे में, अभी जो लॉकडाउन हो रहा है आप इन चीजों के साथ कैसे डील कर रहे हो, या मे बी आपने अपने लिए कोई रूटीन निकाला, या आपको लगता है कि ये चीज मुझे लोगों के साथ शेयर करनी है, you need to do that as well. Why? Because if you just talk about business products all the time, जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है हम में, जो एक हमारा अप्रोच होता है सोशल मीडिया पे कि हमें एक ह्यूमन कनेक्शन बनाना है, हमें एक नेटवर्किंग करनी है, वो मिसिंग रहता है। तो दैट्स व्हाई जब आप लाइव स्ट्रीमिंग पे आपको जब ट्रेनिंग मिलेगी, तो उसमें आप कुछ ऐसे टॉपिक भी ले लो जो बहुत जेनेरिक है नेचर में, and also try to ask questions, seek recommendation and provide people recommendations. and जो आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, it should not be कि मैं बस कैटलॉग को पुश करूं सोशल मीडिया पे और वहां पे देखूं किसी ने ऑर्डर तो कोई ऑर्डर प्लेस करे मेरे साथ, नहीं। it should be network and make friends. हम खुद को नेटवर्क मार्केटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें नेटवर्क बनाना होता है, एंड इट्स सोशल मीडिया इज वन ऑफ द इजीएस्ट टूल्स कि आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। फिर आपके पास पेज है। पेज जब आप क्रिएट करोगे, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो आपको डिसाइड करना है कि पेज का नाम क्या रखूं। वाई? क्योंकि सारा कंटेंट, सारी एडवर्टीजमेंट्स, सारा बूस्ट, पेज प्रमोशन जो आप आगे जाके करोगे, वो कहां पे होगा? पेज पे ही होगा, और जो आपके पेज का नाम होगा, राइट? तो पेज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपको अपना पूरा पेज कंप्लीट करना है, जिसका मैं अभी आपको डेमो दे दूंगा, हाउ टू डू ऑल ऑफ दैट। एंड जैसे आपने देखा, प्रोफाइल पे आपको डेली पोस्टिंग करनी है, बट पेज पे जरूरी नहीं है। अगर आप 3 बार भी एक वीक में करोगे, 4 बार भी करोगे, दैट इज लाइक सफिशिएंट, दैट सफाइसेस, ओके? एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेज को प्रमोट करो और कुछ पोस्ट को बूस्ट भी करो। क्यों करना है ये मैं आपको अगली ट्रेनिंग में, जब आपको मैं दूसरी ट्रेनिंग में मैं आपको पेमेंट सेटिंग्स का ऑप्शन दिखा दूंगा, मैं आपको डेमो दे दूंगा कि बूस्ट पोस्ट कैसे करना है और पेज को कैसे प्रमोट करना है। एंड देन मैं आपको लीड जनरेशन एड भी सिखा दूंगा। तो हम क्या करेंगे, और उसके बाद मैं आपको फॉलो अप और रिक्रूटमेंट भी सिखा दूंगा कि ऑनलाइन कैसे करना है। बट हम क्या करेंगे, हम स्टेप वाइज जाएंगे, वी विल नॉट जस्ट जंप फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ओके? तो आज आप क्या करोगे, यू विल जस्ट वर्क ऑन सर्टेन थिंग्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग में जो हम टास्क करेंगे, again you will perform these tasks, you start promoting your posts, you will start promoting your page, and eventually आप lead generation शुरू करोगे। एंड जब आप लीड जनरेशन भी करोगे, देन जो भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको रिक्रूट कैसे करना है, आपको फॉलोअप्स कैसे करने हैं, एंड इवेंचुअली फिर ट्रेनिंग्स की आपको क्या क्या ट्रेनिंग देनी है, आप किस किस तरीके की ट्रेनिंग दे सकते हो, आप अपने सिस्टम को और ऑटोमेटेड कैसे बना सकते हो, ये सारा फॉलो होगा। बट अभी हम क्या करेंगे, विल जस्ट लर्न वन थिंग एट अ टाइम, ओके? तो पेज, फिर हम देख रहे हैं ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स अभी भी बहुत ज्यादा लोग या तो अंडर प्ले कर रहे हैं या ओवर प्ले कर रहे हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी लोगों को आ रही है सोशल मीडिया में, ऑरिफ्लेम लीडर्स को, वो ये है कि जब वो ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और किसी भी ग्रुप में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको ये भी डिसाइड करना है कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग प्लान करते हो, आपका फोकस सिर्फ क्वालिटी पे है, क्वांटिटी पे है, या आप चाहते हो कि नहीं मुझे क्वांटिटी तो चाहिए बट देयर शुड बी एटलीस्ट सम क्वालिटी एज वेल। तो उसी बेसिस पे आप अपने ग्रुप डिसाइड करो कि आपके पास फ्री ग्रुप्स हैं, आपके पास पेड ग्रुप्स हैं, और पेड ग्रुप बहुत बहुत ज्यादा एफोर्डेबल है। 200, 400, 500, 1000 तक वो आपका महीना चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग कि वो ग्रुप की
कैपेबिलिटीज कितनी है, उस ग्रुप में किस तरीके की ऑडियंस है. बट देयर आर लॉट ऑफ गुड पेड ग्रुप्स एज वेल जो आपको 400 से 500 रुपया महीना का चार्ज करते हैं, जहां पे आप इजीली दिन के 3 या 5 पोस्ट कर सकते हो और आप इन ग्रुप्स में लाइव भी जा सकते हो और आपको वहां पे अच्छी क्वालिटी की लीड्स आती है. इनफैक्ट लाइक लॉट ऑफ डिजिटल लीडर्स जिनको इतनी काफी तेजी से ग्रोथ मिली, Facebook groups has been one of the primary prospecting tool for them. उन्होंने सारी prospecting ग्रुप से शुरू करी है, ग्रुप से ही सारा बिजनेस बना. लेकिन आज के टाइम में अगर आप देख रहे हो, people are struggling once it comes to Facebook groups. Why? क्योंकि उनके पास प्लान नहीं है. And that's what I have been telling again and again. अगर आप बिना सोचे समझे, बिना प्लान के कुछ भी करोगे, वो बैकफायर करेगा. And that is why a lot of the leaders जो दिन के 50-50, 60-60 पोस्ट करते गए ग्रुप्स में, आज के टाइम में उनको ग्रुप्स पे कुछ भी एंगेजमेंट नहीं मिल रहा है. बहुत बार उनको ग्रुप से ब्लॉक किया जाता है. इनफैक्ट फेसबुक भी कभी कभी उनके अकाउंट को फ्लैग कर देता है और वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाते उन ग्रुप्स में. और इसके लिए रूल सिंपल है कि आप 10 से ज्यादा पोस्ट पर डे मत करो ग्रुप्स में, और वो भी अलग अलग ग्रुप में प्रोस्पेक्टिंग करो. How to do that? Again, as I mentioned, कि this is the critical time and we need to work on a lot of training. So मैं आपको जब मैं prospecting पे दूसरी ट्रेनिंग दूंगा आपको, उसमें मैं आपको एक सैम्पल प्लानर बना के दूंगा कि आप ग्रुप्स को कैसे आइडेंटिफाई करो और आप टेम्पलेट किस तरीके से प्लान कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने लाइफस्टाइल के ग्रुप चूज किए, आपने वर्क फ्रॉम होम के ग्रुप चूज किए, आपने स्किन केयर, ब्यूटी, कलर कॉस्मेटिक्स के ग्रुप चूज किए, आपने वेलनेस के ग्रुप चूज किए. फिर आपको क्या करना है, आपको कैनवा में जाके टेम्पलेट्स बनाने हैं और वेलनेस के टेम्पलेट जो हैं, वेलनेस के टेस्टिमोनियल्स जो हैं, वो आप सिर्फ वेलनेस ग्रुप्स में ही डालोगे. स्किन केयर के जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं, स्किन केयर के जितने भी आपने कैनवा क्रिएटिव बनाए, वो आप सिर्फ स्किन केयर ग्रुप में डालोगे, और वो भी प्लान के साथ. आज एक पोस्ट गया, 2-4 घंटे बाद दूसरा पोस्ट जाएगा. ओके, so that is also something जहां पे आपको बहुत केयरफुल रहना है. आप ब्लैटेंटली डेस्परेट होके, एक ही पोस्ट है आपके पास, आई एम लुकिंग फॉर 20 फीमेल्स, और आप उसी पोस्ट को 10, 20, 40, 50 ग्रुप्स में पोस्ट करते हो. एंड बहुत बार जो मैंने देखा है, जो आप वो कंटेंट क्रिएट करते हो, जैसे आई एम लुकिंग फॉर 20 फीमेल्स, वो कंटेंट आपके ग्रुप्स के लिए ओके है, लेकिन वो कंटेंट आपके पेज पे नहीं जाना चाहिए, वो कंटेंट आपके प्रोफाइल पे नहीं जाना चाहिए. प्लीज डू नॉट डू दैट. मैं बहुत बार कह चुका. वाई? क्योंकि आपकी प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज होती है. आप अपनी प्रोफाइल को एज अ सेलिंग मीडियम स्टार्ट करते हो, एज लाइक स्ट्रिक्टली बिजनेस मीडियम यूज करते हो, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आपके बिजनेस में से, आपकी पर्सनालिटी में से. ओके, सो ग्रुप में क्या करना है, 10 पोस्ट दिन के आप करो. टाइम 1-1 घंटे बाद या 1 घंटे में 1-2 पोस्ट करे डिफरेंट ग्रुप्स में, फिर थोड़ा 1 घंटे बाद और 1-2 करे, राइट. एंड टेस्टिमनी ज्यादा पोस्ट करो. जितनी ज्यादा टेस्टिमनीज हो सकती हैं आपके पास, दैट इज सम अनदर थिंग जहां पे अभी आपको फोकस करना है. अपने नेटवर्क से टेस्टिमनीज मांगो, स्किन केयर की टेस्टिमनीज मांगो, जो भी आपके कस्टमर हैं उनसे टेस्टिमनी ले लो. नॉट नेसेसरी कि वीडियो टेस्टिमनी हो. अगर उन्होंने व्हाट्सएप पे भी अच्छी टेस्टिमनी दी है तो उनसे परमिशन मांगो, उनकी पिक्चर ले लो और उस पिक्चर के साथ उनका टेस्टिमनी ऐड करके सोशल मीडिया पे डालो. अपने जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं आपको, उनको व्हाट्सएप में एज अ ब्रॉडकास्ट मैसेज डालो. लेकिन टेस्टिमोनियल बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप स्किन केयर का टेस्टिमोनियल ले लो, आप वेलनेस का टेस्टिमोनियल ले लो, या फिर आप अपॉर्चुनिटी बिजनेस का टेस्टिमोनियल ले लो. दैट्स व्हाई लाइव स्ट्रीमिंग कम्स हैंडी. फॉर एग्जांपल, अभी क्वारंटीन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, एंड अगर आप में से कोई यूज करना चाहता है कि हे, अभी जैसे लॉट ऑफ पीपल जो होम बाउंड होंगे, लॉट ऑफ पीपल माइट हैव what we call it, they must have missed their jobs as well. उनके पास jobs नहीं होंगी अब. lot of women who are home bound, who are used to working, they might be getting bored. तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप एडवर्टाइज करके, आप लाइव स्ट्रीम करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं ऑरिफ्लेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ. व्हाई? बिकॉज इट फिट्स परफेक्टली. आपके पास एक होम बेस्ड बिजनेस है, आप घर से नेटवर्किंग कर सकते हो यूजिंग सोशल एंड डिजिटल मीडिया. आपको हम ऑनलाइन ट्रेन करेंगे, आपको हम ऑनलाइन कोच करेंगे, आपको हम ऑनलाइन एम्पावर करेंगे. It sounds really really nice, but provided you have a plan. Okay, so live streaming में for example आप क्या करो, आप एक वीक का लाइव स्ट्रीम प्लान करो, मे बी वीक में 3 दिन. आप लोगों को
आप को होस्ट भी बुला सकते हो। तो मे बी आप अपनी टीम के साथ लाइव जाओ और हर टीम मेंबर जो भी आप को होस्ट होता है आपका, उसका टेस्टिमोनियल मंगवा दो। You know, you tell that person, hey guys, I'm going live with one of my most amazing resource or one of the most amazing people I have ever come across. So please stay tuned. Tomorrow at 3 p.m. I'll go live and I'll introduce you to one person I am so fond of. One person who transformed her life from a simple homemaker to these one of the most successful entrepreneurs in my network. If you are homebound and you want to know how you can also start doing this business and start earning income and engage yourself into some or the other thing, please attend tomorrow, right? तो आप क्या कर सकते हो, आप testimonial based live streaming भी कर सकते हो, right? So everything is up there. You all need to just focus on ideas और उनको कैसे execute करना है, उनको कैसे implement करना है, okay? Last but not least, आपके पास advertisements है। तो अगर आप मंथली बजट एंड यहाँ पे लाइक नो राइट नाउ वी हैव 1000 अटेंडीज, ओके दैट्स ह्यूज। लेकिन 1000 अटेंडीज जब कल को एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, सबका एड थोड़ी एक जैसा होगा, एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट एड। तो सबसे पहले आपको अपना मंथली बजट प्लान करना है एंड बजट विल अगेन वेरी। कोई कहेगा मैं तो 10,000 खर्च कर सकता हूँ हर मंथ, कोई कहेगा हे आई कैन ओनली स्पेंड 2000, कोई कहेगा आई कैन ओनली स्पेंड 1000, राइट? सो द बजट विल वेरी। तो जब कल को आप लीड जनरेशन के लिए एडवर्टीजमेंट भी शुरू करेंगे तो यू डू नॉट हैव टू वरी के आई डू नॉट हैव एनफ मनी। बहुत इजी है और आपको छोटी छोटी चीजें सीखनी है, जैसे बूस्टिंग, प्रमोट योर पेज एंड फाइनली एडवर्टीजमेंट्स, और क्या कैप्शन यूज करनी है, क्या पिक्चर्स यूज करनी है, उस सब पे मैं आपको डाउनलोड दे दूंगा गोइंग फॉरवर्ड। सो इफ यू लुक एट इट, अगर आपके पास एक सॉलिड प्लान है फेसबुक को लेके, यानी you have the content plan for your profile, you have the content plan for your page, you have the content, like basically when I say content is prospecting plan for your Facebook groups, और आपके पास एक advertisement plan भी है, honestly guys, आपका 60 to 70% business, even 80% of business easily सिर्फ Facebook से drive होगा, but provided you have a plan, provided you know how to use these things rightly. Why? क्योंकि सोशल मीडिया पे आई विल कम विद सर्टेन गोल्स। व्हाट आर माय सोशल मीडिया गोल्स? सी, मेरा पहला गोल हो सकता है कि मुझे अपने नौवे सेट के लिए कस्टमर्स चाहिए। मेरा गोल हो सकता है कि मुझे ना टेंडर केयर को प्रमोट करना है। बेसिकली आई वांट टू फाइंड पीपल जो मेरे साथ डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करें किसी प्रोडक्ट को लेके, ओके? एंड फॉर दैट व्हाट इज दैट आई नीड टू डू, मुझे कैटलॉग की बात करनी है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट कैटलॉग की बात हर कोई करता है, but it depends the way you talk about catalog. It breaks my heart. Why? Because 90% of people वो सिर्फ कैटलॉग का स्क्रीनशॉट उठा के पोस्ट कर देते हैं और उनको लगता है उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। And that is where the problem is. जब आपको कैटलॉग को प्रमोट करना है तो या तो आप एक अच्छा वीडियो बना लो या आप लाइव आ जाओ। मैंने बहुत बार कहा था कि हर महीने पहली तारीख को, दूसरी तारीख को लाइव आ जाया करो and talk about the catalog. इंट्रोड्यूस कैटलॉग टू पीपल। इससे क्या होता है, एक रूटीन क्रिएट होता है एंड एवरीवन विल नो कि हर महीने की पहली तारीख को आप ऑरिफ्लेम का कैटलॉग पहुंचाते हो लोगों तक, एंड यू टेल पीपल कि इस कैटलॉग के अच्छे अच्छे ऑफर्स क्या हैं, कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाई लाइव स्ट्रीमिंग विल बिकम इम्पोर्टेंट। तो आप क्या करोगे, आप लाइव आओगे और आप लोगों से बात करोगे और उन तक कैटलॉग पहुंचाओगे। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीन के पीछे छुप के बातें करना, that will not work, that will not effective, okay? Then favorite products, like कितने प्रोडक्ट्स हैं ऑरिफ्लेम के, तो कल को आप लिस्टिकल भी बना सकते हो। जैसे आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे 5 फेवरेट परफ्यूम कौन है ऑरिफ्लेम के। Why is Tender Care one of my favorite products by Oriflame, right? Okay, no, like you know, Milk and Honey क्यों इतने सालों से मेरे, like you know, one of the closest is one of the product which is very close to me, very dear to me. तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सकते हो, प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसा मैंने अभी ग्रुप्स के लिए भी कहा था, टेस्टिमनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, जितने भी आपकी डाउनलाइंस हैं, तो अगर उन्होंने आपसे प्रोडक्ट्स लिए हैं, उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, तो आप उनसे टेस्टिमनीज मंगा लो और उन टेस्टिमनीज को सर्कुलेट करो। और ये टेस्टिमनी सिर्फ पिक्चर वाली टेस्टिमनी भी हो सकती है और ये आपका वीडियो बेस्ड टेस्टिमनीज भी हो सकती है, ओके?
तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ओके मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना है जो रिक्रूटमेंट जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो आप कुछ काम करना चाहते हैं घर से, यानी जो अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है। अगेन अगर मुझे लोगों को बिजनेस में लेके आना है, मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना है। एंड हाउ डू आई प्रमोट बिजनेस अपॉर्चुनिटी? आई टॉक अबाउट माय लाइफस्टाइल, यानी मैं कैसी ट्रेनिंग्स देता हूँ, मैं किन किन लोगों से मिलता हूँ, हम कौन कौन से ट्रेनिंग या इवेंट्स अटेंड करते हैं, कैसे लोगों से हम नेटवर्क करते हैं, क्या बेनिफिट्स है हमारे बिजनेस के। यू नीड अ प्रॉपर किट, राइट? तो आपको ट्रेनिंग की बात करनी है, इवेंट्स की बात करनी है। एंड अगेन टेस्टिमनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो, आपकी वजह से लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एंड दीज कुड बी स्मॉल स्मॉल टेस्टिमनीज। फॉर एग्जांपल कोई कहेगा हाउ वंडरफुल इट वाज फॉर मी टू गो टू द बीच फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं एक ओशन विजिट करूं, लेकिन ऑरिफ्लेम की वजह से आई हैपन टू बी इन द मैनेजर सेमिनार इन गोवा, और वहां पे पहली बार व्हेन आई वाज ऑन द बीच, the feeling was exhilarating. I was so happy because of Oriflame I could achieve that. किसी की पहली बार फ्लाइट हुई, कोई पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया आपकी वजह से, किसी का पहला बार इनकम आया, किसी का पहला बार पासपोर्ट बना, किसी ने घर बनाया अपना, किसी ने हस्बैंड को कोई चीज गिफ्ट करी। दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज एंड यू नीड टू फिगर आउट कि आप ऐसी टेस्टिमनीज कितनी लेके आ सकते हैं और उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप प्रमोट करते हो कंटेंट को, जब आप प्लान करते हो कंटेंट को, तो यू विल फिगर आउट दैट लॉट ऑफ पीपल, आपका कंटेंट बहुत लोगों तक पहुंचता है। योर कंटेंट विल रीच टू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बट नॉट एवरीवन विल शो इंटरेस्ट, जस्ट अ हैंडफुल ऑफ देम, जो कि हमारे साथ ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में भी होता है। आई एम श्योर दैट यू विल एग्री विद मी दैट व्हेन यू गो टू ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, अगर आप एक महीने में समझो 200-300 लोगों से मिले, क्या are you able to recruit all 300 of them? No. उन 300 में से समझो कि 40-50 लोग आपने रिक्रूट किए और कुछ लोग आपके साथ एक्टिवली काम करते हैं, राइट? कुछ लोग दे स्टॉप वर्किंग, दे डू नॉट रेस्पॉन्ड टू योर टेक्स्ट या आपकी कॉल से, लेकिन फिर आप देखते हो कि 5 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर से आपको कोई रीच आउट करता है, हे सॉरी मेरा थोड़ा कोई इमरजेंसी हो गया था, आई कुड नॉट कंटिन्यू, यू नो कैन वी डिस्कस इट नाउ। तो आप देखोगे कि आपके पास पूरे ऑप्शंस है। सेम थिंग हैपेंस हियर, जब आप प्रमोट करते हो कंटेंट को, तो आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचता है, लोगों को आपके बिजनेस के बारे में चीजें पता चलती है। मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड टुडे। जैसे आपने अगर एड चलाया होगा 2 महीना पहले, और अगर आप एड आज चलाओगे, जैसे यू नो फ्लेक्सिबल वर्किंग अपॉर्चुनिटी, वर्क फ्रॉम होम टाइप एड चलाओगे, बहुत क्रेजी रेस्पॉन्स आएगा। व्हाई? बिकॉज सिचुएशन डिफरेंट है। In today's time, in current scenario, people are looking for something like that, right? So जो चीज तब relevant थी, वो अब बहुत ज्यादा relevant होगी। So please start doing ads, start doing page promotions, boost post, whatever way you can prospect आज के टाइम में, okay? And ये मैंने बहुत बार कहा है कि what exactly people love on social media, जब उनको कोई नई चीज सीखने को मिलती है, उनको एक स्किन केयर रूटीन पता चला, उनको आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पता चले, उनको आपकी टीम और आपके बिजनेस में पता चला, उनको पता चला कि आप लाइक यू नो आप कैसे पर्सन हो, राइट? जब वो आपके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, या आप उनको इंस्पायर करते हो, या आप उनमें एक पैशन क्रिएट करते हो, न्यूज, इंफॉर्मेशन, यही सब के लिए तो सोशल मीडिया पे आते हैं लोग। आजकल 90% ऑफ द पीपल हु कम टू सोशल मीडिया, वो किस लिए आते हैं? क्योंकि वो बोर्ड है और वो देख रहे हैं क्वारंटीन को लेके क्या हो रहा है, क्या कंट्रोल्स हो रहे हैं, एंड लोग क्या शेयर कर रहे हैं, लोग अपना क्वारंटीन कैसे स्पेंड कर रहे हैं, हाउ आर पीपल डीलिंग विद लॉकडाउन। कोई भी सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं जाएगा कि उनको प्रोडक्ट खरीदने हैं, और ये आज का नहीं, हमेशा का ट्रेंड है। पीपल नेवर गो टू सोशल मीडिया कि उनको कुछ चीज खरीदनी होती है, वो बस वहां पे कंटेंट या इंफॉर्मेशन या ऐसे खुद को एंगेज करने के लिए जाते हैं, बट सडनली दे हैपन टू फाइंड समथिंग जो उनको अट्रैक्ट करता है आपके बिजनेस की तरफ, एंड देन दे शो इंटरेस्ट। इज एग्जैक्टली लाइक योर ऑफलाइन मार्केटिंग। जब आप किसी फ्रेंड के साथ घूमते हो एंड सडनली यू फील हंग्री एंड यू गो टू अ मॉल, और आपको मॉल में 3rd फ्लोर में जाना है जहां पे फूड कोर्ट है, बट टिल द टाइम यू रीच द फूड कोर्ट, आपको कोई अच्छा सा आउटलेट दिखता है जहां पे सेल चल रही है या काफी अच्छा प्रोडक्ट डिस्प्ले है, आपके पास एक इमीडिएटली इंपल्स क्रिएट होता है, you go inside the store and you end up making a purchase, right?
That's exactly how it works in online media as well. तो आपको भी क्या करना है, लोग सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट खरीदने नहीं आते, लोग सोशल मीडिया पे they do not come to find a new job. You have to create content जो उनको इंटरेस्ट कर ले, एक इम्पल्स क्रिएट कर दे, so that they reach out to you, so that they drop a comment or just inquire कि आप क्या करते हो, can I know more about this product, can I know more about your business, right? So this is something which we have to make sure. Now जब आपको prospecting करनी है, जो आपका पहला रूल है, वो है कि आपके पास पेज होना चाहिए. ओके, तो आपके पास सोशल मीडिया पे पेज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? क्योंकि कल को जब आप प्रमोट पेज करेंगे, बूस्ट करेंगे, और अगर आपको एडवर्टीजमेंट चलाना है, उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक अच्छा फंक्शनल पेज हो. नाउ मैं अभी आपको डेमो दूंगा कि आप एक अच्छा बिजनेस पेज कैसे सेट कर सकते हो, आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है. व्हाई? क्योंकि नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको मैं दिखा दूंगा कि आप उसी कंटेंट को बूस्ट कैसे कर सकते हो, प्रमोट कैसे कर सकते हो, और आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है. तो पेज के लिए जो आपकी पहली रिकमेंडेशन है वो ये है कि ऑरिफ्लेम नाम कहीं नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पेज है सफीर हाशमी के नाम से, इट कैन नॉट बी सफीर हाशमी ऑरिफ्लेम. ओके, वाई? एक तो ये ब्रांड को कंप्रोमाइज करता है, और दूसरा जो भी हमारी ग्लोबल की डिजिटल गाइडलाइंस है, इट गोज अगेंस्ट देम. तो यू कैन नॉट हैव ऑरिफ्लेम या तो अपने प्रोफाइल नाम में, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके यूट्यूब पे, आपके लिंक्डइन पे, आपको अपने नाम के साथ ऑरिफ्लेम नहीं जोड़ना है. सफीर हाशमी, दैट्स इट. सफीर हाशमी ऑरिफ्लेम, नो वे. देन another thing which is up to discussion is कि आप जब अपने पेज का नाम देते हैं, क्या आप सिर्फ अपने नाम से पेज बनाओ या अपने नाम के साथ कुछ और चीज ऐड कर दो. अब इसमें इट्स टोटली अप टू यू. आप सिर्फ अपने नाम से भी पेज क्रिएट कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म. ओके, जैसे मेरा नाम सफीर हाशमी है, तो आई कैन क्रिएट अ पेज जस्ट बाय नेम सफीर हाशमी. बट उस पेज में सिर्फ एक लिमिटेशन है. व्हाई? क्योंकि ना ही मैं कोई सेलिब्रिटी हूं, ना ही मैं कोई रिनाउंड सोशल मीडिया ब्लॉगर हूं या इन्फ्लुएंसर हूं, तो मुझे लोग नहीं जानते, राइट? लेकिन अगर मैं अपने नाम के साथ अपना पर्सनल ब्रांड, यानी लोगों को बता दूं कि मैं क्या करता हूं, वो भी ऐड कर दूं, तो इससे क्या होता है कि लोगों को मेरी आइडेंटिटी जान पाना बहुत इजी रहता है. तो फॉर एग्जांपल सफीर हाशमी, उसके साथ मैं ऐड करूं डिजिटल कोच, यानी मैं डिजिटल कोच हूं. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज दैट जो लोग हैं उनको इजीली आइडिया मिलता है, ओके दिस पर्सन, इनका नाम सफीर हाशमी है और ये डिजिटल कोच है, यानी ही इज इनटू डिजिटल बिजनेस, और ये लोगों को ट्रेन और कोच करते हैं डिजिटल को लेके. तो जस्ट बाय गिविंग माय पेज अ नाइस नेम, आई मेक इट वेरी क्लियर कि मेरा नाम क्या है और मेरा बिजनेस क्या है, मेरा ब्रांड क्या है. ओके, देन पिक्चर को लेके हमने बहुत बार बात करी है कि आपको हमेशा एक कैंडिड पिक्चर यूज करनी है, जो आइडियली सिर्फ आपकी पिक्चर, ग्रुप पिक्चर नहीं चाहिए, कोलाज नहीं चाहिए. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे डू अननेसेसरी एडिट्स, वो हार्ट बनाते हैं, वो इमोजीज यूज करते हैं. प्लीज डू नॉट डू दैट. A nice candid picture of yourself should be at the profile picture, कहीं पे भी, Instagram, Facebook page. Then show your brand and business from the cover picture of your Facebook page. यानी लोगों को या तो आप एक सिंपल सी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, या उस पिक्चर को आप हल्का सा एडिट करके एक अच्छा सा डिजाइन एंड फील भी दे सकते हैं. ओके, दैट इज अगेन समथिंग जो मैं अभी आपको डेमो में दिखा दूंगा, प्लीज वेट फॉर दैट. और पिक ए यूजर नेम. यूजर नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अपने पेज के लिए यूजर नेम बहुत जरूरी है कि यूज करें. व्हाई? क्योंकि यूजर नेम से आपकी जो आईडी है वो एक यूनिक आईडी हो जाती है, और इवेंचुअली फेसबुक अगर कोई भी कल को आपको सर्च करता है अपने फेसबुक पे, तो आप इजीली सर्च में आना शुरू कर जाते हो. लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैव अ कॉल टू एक्शन. यानी आप अपने पेज में क्या कर सकते हैं, आप एक कॉल टू एक्शन सेट कर सकते हैं, बटन. और यूजुअली जो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपका कॉल टू एक्शन बटन जो है वो होना चाहिए सेंड मैसेज. वो कैसे सेट करना है वो अभी मैं आपको डेमो में फिर से दिखा दूंगा. ओके, एंड फाइनली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, हैव अ कंटेंट प्लान. अगर आपके पास प्लान नहीं है, आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे विदाउट अ प्लान. तो कंटेंट प्लान आप सिंपल बना लो कि पेज पे
3 पोस्ट जाएंगे। फॉर एग्जांपल हर मंडे, हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे आप पेज पे पोस्ट करते हो, तो आप इजीली पहले से ही प्लान कर सकते हो कि वेलनेस के कितने पोस्ट जाने हैं, स्किन केयर को रिलेटेड में भी आप कोई पोस्ट कर रहे हो, कितने टेस्टिमनीज आप शेयर कर रहे हो फॉर दिस मंथ, राइट। प्लान नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। Again, I'm showing Kamalji's page here for a reference. अगर आप देखोगे like you know a good page, जैसे मैंने अभी कहा था आपकी पर्सनल पिक्चर होनी चाहिए, द प्रोफाइल पिक्चर। तो आप देख रहे हो कमलजीत हैज एडेड हर ओन पिक्चर, राइट। जब आप नाम देख रहे हो पेज का तो अगेन यू सी कमलजीत नेम अलोंग विद हर पर्सनल ब्रांड दैट मेक बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ। उसके नीचे आपको बसीन कमलजी दिख रहा है जो कि डिनोट कर रहा है कि उनका यूजर नेम क्या है। कवर के लिए जब आप पेज पे कवर डिजाइन करते हो तो आपके पास पिक्चर, एक कोलाज टाइप सॉरी पिक्चर, और आप एक वीडियो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कमलजीत ने एक वीडियो यूज किया है जो कि उनके डबल डायमंड कॉमेमोरेशन का है, और कॉल टू एक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था वो सेंड मैसेज रखा है। वाई? क्योंकि आज के टाइम में लोग कंफर्टेबल हैं आपसे ऑनलाइन बात करने के लिए, आपसे चैट करने के लिए, रादर देन इमीडिएटली कॉलिंग यू। आप सिर्फ उन्हीं लोगों से फोन पे बात करते हो जो या तो आपके जानकार हैं या जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हो। विद स्ट्रेंजर्स, विद अननोन पीपल बहुत बहुत कम हद तक पहली बार में ही आप एक अच्छा कन्वर्सेशन स्ट्राइक कर सकते हो। दैट्स व्हाई चैटिंग एंड व्हाट्सएप आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपको रिक्रूटमेंट में हेल्प करेंगे। और जो हमारी ट्रेनिंग्स होंगी रिक्रूटमेंट एंड फॉलोअप को लेके, तो वहां पे हम और डिस्कस करेंगे कि आप क्या क्या सैंपल्स यूज कर सकते हो। और आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है कि अपने पेज के लिए स्क्रीनशॉट मत ले लो कैटलॉग के, ऑरिफ्लेम की पिक्चर्स मत ले लो जो आपने यहाँ से वहां से उठा ली, या कुछ भी मत डाल दिया। लाइक लॉट ऑफ पीपल यूज रिलीजियस फिगर्स, लॉट ऑफ पीपल यूज लाइक पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स एंड सनसेट्स एंड ऑल। नहीं, अपनी पिक्चर्स, अपनी टीम की पिक्चर्स, बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक। व्हाई? क्योंकि क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अपीयर क्रेडिबल, यू हैव टू अपीयर वेरी स्ट्रांग देयर। और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, वाई? क्योंकि ऑनलाइन में लोग ऐसे चाहते हैं कि दे डील विद क्रेडिबल पर्सन, और उसका एक ही तरीका है कि हम वहां पे खुद के बारे में बात करें, अपनी टीम्स के बारे में बात करें, अपने बिजनेस के बारे में बात करें, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, ना कि हम सिर्फ ऑरिफ्लेम की पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं और सिर्फ कैटलॉग के स्क्रीनशॉट डाले जा रहे हैं। दैट वे हमारे एडवर्टीजमेंट्स, हमारी प्रोस्पेक्टिंग हमेशा डोलड्रम्स में रहेगी। ओके, ये पुराना वाला पेज का सेटअप है। आई विल आल्सो लाइक टू अपडेट यू दैट जो नया वाला पेज है उसमें थोड़ी सी चेंज हो रही है। उसमें अभी आपका अवार्ड सेक्शन नहीं है, उसमें अभी आपका बायोग्राफी सेक्शन नहीं है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टोरी सेक्शन भी नहीं है। तो क्या मैकेनिज्म है, इट माइट वेरी, बट लेकिन हाँ, जैसे पुराने पेज में बहुत ज्यादा डिटेल आप ऐड कर सकते थे, जो कि फेसबुक का नया वाला वर्जन है उसमें सिर्फ आप अबाउट सेक्शन अपडेट कर सकते हो। तो दिस इज अगेन समथिंग जो कि अभी डिस्कशन के अंडर है, लेकिन मैं आपको अभी डेमो भी दूंगा कि हाउ टू सेट इट अप। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओके, देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो ये है कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते ऑनलाइन। You cannot have multiple personalities or multiple personal brands। कि आप कहोगे इंस्टाग्राम पे आप एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हो, लिंक्डइन पे कहते हो आप एक बिजनेस कोच हो, यूट्यूब पे आप कह रहे हो कि आप एक मेकअप कलर ये ब्यूटी एंटरप्रेन्योर हो। नहीं, जो आपका ब्रांड है यू हैव टू लिव बाय इट। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर है, बट दे नेवर टॉक अबाउट वेलनेस। वो सिर्फ ऑरिफ्लेम से पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। तो अगर आप एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर हो, आपको क्या बात करनी है? यू नीड टू टॉक अबाउट वेलनेस, यू नीड टू टॉक अबाउट रूटीन, you need to share the testimonials, you need to talk about the before and after, you need to talk about the importance of having a routine। आपको टाइम टू टाइम लाइव जाना है, लोगों को दिखाना है कि वो क्या क्या फिटनेस एक्टिविटीज कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज द काइंड ऑफ कंटेंट जो एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर को शेयर करना चाहिए। जैसे यहाँ पे कमल जी से दैट शी इज अ बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच, but she has mentioned it that like कि आप देखो पहला टेस्टिमोनियल है, सेकंड में शी इज जस्ट यूजिंग लाइक
digital entrepreneurship as a tool कि आज के time में when people are worried about their business, people are very concerned about their careers, how Kamaljeet did a right decision by going digital and having a setup कि आज के time में she can easily accommodate people onto our online system and coach and empower them to be entrepreneurs with her dreams on club, right? And that is the kind of attitude we all need to have, and we all need to tell people that, hey, don't worry, we have a solution, we have a team, we have a set of trainings, we will coach and empower you. आप बस commitment दे दो हमें कि that you want to do this, and there are a lot of people who are looking for such kind of opportunities. And when I talk about prospecting flow, it's very easy. तो फर्स्ट यू डिसाइड, जैसे फेसबुक की बात करता हूँ, तो पहले अपना प्रोफाइल ऑर्गेनाइज करो, नाइस प्रोफाइल पिक्चर, नाइस कवर इमेज, द अबाउट सेक्शन शुड बी कंप्लीट. देन आप अपना पेज क्रिएट करो एंड कंप्लीट द पेज एज वेल, फॉलो द गाइडलाइंस एंड स्टिक टू इट. उसके बाद आपको अपना एक कंटेंट प्लान बनाना है, यानी कितने पोस्ट जाएंगे, बूस्ट कितना होगा, प्रमोट पेज कितना होगा, एडवर्टीजमेंट कितना होंगे. उससे क्या होगा कि आपके पास आप एंगेज कर पाओगे लोगों के साथ, आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे, आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएगा. और जो भी आपके पास लीड्स आती है, आप उनको रिक्रूटमेंट मैसेज भेजो, या तो आप उनको एक सिंपल टेक्स्ट वाला मैसेज भेज सकते हो, या आप उनको लिंक भेज सकते हो अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का, या आप उनको अपने व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली लेके आ सकते हो, राइट? और अगर आपके पास वीडियो है तो आप इन लोगों के साथ अपनी रिक्रूटमेंट मीटिंग या रिक्रूटमेंट वीडियो शेयर कर सकते हो, सो दैट दे अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट यू एंड योर बिजनेस. तो क्या जरूरत है कि आपके पास एक सेटअप हो कि आप ऑनलाइन सारा फंक्शन कैसे कर पाए. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट लीड जनरेशन. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लेकिन फिर उनका रिक्रूटमेंट चैलेंजिंग रहता है, वो लोगों को ट्रेन नहीं कर पाते हैं, वो लोगों को मैनेजर्स या सीनियर मैनेजर्स नहीं बना पा रहे हैं. सो इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ प्रॉपर प्लान कि आपके पास ट्रेनिंग्स कितनी है सिस्टम में, आपकी कोर टीम में कितने मेंबर्स हैं, आप वीकली कितने वेबिनार्स करते हो, किस किस टॉपिक पे वेबिनार करते हो, कौन कौन से टॉपिक में स्पेशलिस्ट है आपकी टीम में से. तो इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ प्रॉपर सेटअप एंड नॉट जस्ट डूइंग थिंग्स रैंडमली और विदाउट ए प्लान. नाउ आई टॉक्ड अबाउट फेसबुक पेज, तो मैं आपको अभी डेमो देता हूं कि आप एक पेज कैसे सेटअप कर सकते हैं. आई एम श्योर कि आप बहुत सारे लोगों के पास पेज होगा, बट कंसिडरिंग कि हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये ट्रेनिंग, तो आगे जाके आपको जो फर्दर चीजें करनी है वो इसी चीज को लेके इसी चीज पे बिल्डअप करना है. तो मैं आपको क्विकली डेमो देता हूं. फॉर दैट आई वुड नीड किसी का फेसबुक लॉगिन एंड पासवर्ड चाहिए होगा मुझे, सो दैट आई कैन गिव द डेमो. Just a second, guys. Just okay. Let me check the chat section. अगर मेरे पास कुछ credentials आए होंगे. Guys, क्या आप एक साथ पासवर्ड एंड ईमेल भेज सकते हो? People are sending me email, फिर वो पासवर्ड अलग से भेजते हैं. There are 1,000 chats which come in between. Guys, आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एक साथ भेज दो प्लीज. आई डोंट नो व्हाई डू यू सेंड मी ईमेल आईडी एक साथ अलग और पासवर्ड अलग. बीच में इतने टेक्स्ट आ रहे हैं, सो दैट आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट. थैंक यू नितिन, आपका यूज करते हैं आज एंड फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल एज वेल.
But Nitin, I believe that you have also upgraded to the new version, right? तो I think बहुत सारे लोगों के पास पुराना version है. Okay. Okay guys, अभी मैं यहाँ पे शुभांगी के प्रोफाइल में लॉग इन कर रहा हूँ. Can you see the screen? आप एक बार प्लीज कंफर्म कर दो if you can see the screen. Okay. Now I am into शुभांगी's profile and यहाँ से आप easily देख पाओगे कि शुभांगी का प्रोफाइल है. Now what शुभांगी wants to do is कि वो ज्यादा से ज्यादा लीड्स लेके आ पाए, यानी वो अपनी प्रोस्पेक्टिंग को बहुत ज्यादा बेटर बनाए. एंड नाउ शी डिसाइड्स कि वो पेज क्रिएट करेगी and then she will start doing advertisements and other promotions onto the page. And for that the simple thing you need to do is आप यहाँ create पे क्लिक करो और यहाँ पे फिर पेज पे क्लिक करो. Now जो ही आपने पेज पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं. द फर्स्ट ऑप्शन यू गेट इज दैट हे डू यू वांट टू क्रिएट द पेज इनटू द बिजनेस और ब्रांड कैटेगरी और कम्युनिटी और पब्लिक फिगर. आई आइडियली रिकमेंड कि आप हमेशा बिजनेस और ब्रांड कैटेगरी में क्रिएट करो अपना पेज. बट फॉर एग्जांपल इफ यू आर द टॉप 15 लीडर्स, टॉप 15 इन इंडिया, यू हैव अ रियली स्ट्रांग नेटवर्क, यू हैव अ रियली ग्रेट फॉलोइंग, तो आप इजीली पब्लिक फिगर में भी अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं. But again, to be on the safer side and to have the better returns coming onto your ads and everything, business और brand is something जो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा. तो यहाँ पे आप देखो हम क्लिक करेंगे बिजनेस और ब्रांड में. जो ही हमने गेटिंग स्टार्टेड किया तो सबसे पहले अब मुझे अपने पेज का नाम देना है. ना यहाँ पे मैं एक सैंपल ले रहा हूँ, संगीता. ना फॉर एग्जांपल संगीता इज ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर विद ऑरिफ्लेम और उनको अपना फेसबुक का पेज क्रिएट करना है, राइट? तो वो सिर्फ संगीता के नाम से भी कर सकते हैं. बट एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड दैट संगीता इज नॉट अ सेलेब, शी इज नॉट समवन हु इज एन इन्फ्लुएंसर और अ बिग ब्लॉगर जिनको बहुत ज्यादा फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे. तो उनको अपनी आइडेंटिटी सेट करनी है. दैट्स व्हाई वो अपने नाम के साथ अपना ब्रांड भी हाईलाइट करते हैं. हे आई एम beauty and wellness intro. Okay, so Sangeeta made it very clear that hey, I am beauty and wellness entrepreneur. और कैटेगरी जैसे मैंने पहले कहा था हम यहाँ पे भी एंटरप्रेन्योर चूज करें. ओके, नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. Now I will have to update my profile picture as well as my cover image, but temporarily मैं इन चीजों को skip भी कर सकता हूँ और ये डिटेल मैं यहाँ पे बाद में भी ऐड कर सकता हूँ. Okay. Now you see just in 2 clicks my page is created. But that does not mean कि I can immediately start posting content and boosting, promoting. नहीं. सबसे पहले जैसे मैंने अभी कहा था organizing is very important. यानी आप complete करो. तो सबसे पहले what संगीता does is she says hey I want to have a nice profile picture. तो यहाँ पे हम update पे click करेंगे. We'll go to the upload photo section and where is this? For example, Sangeeta chose this picture as her profile picture. Okay. So my profile picture is updated. Cover को लेके मैं अभी आपको एक recommendation दे दूंगा. So please wait while I update my cover. I have some certain recommendations कि आप cover को कैसे और better बना सकते हो. अभी यूजर नेम देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर नेम भी. क्यों? क्योंकि अभी मेरा फेसबुक ऐसे दिखता है, संगीता ब्यूटी वेलनेस एंटरप्रेन्योर माय पेज आईडी. सो इन ऑर्डर टू मेक इट यूनिक
मैं यहाँ पे एक यूजर नेम क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल संगीता। तो अब ये देखो आप, संगीता इज नॉट अवेलेबल बिकॉज समबडी इज ऑलरेडी टेकन इट, तो मैं यहाँ पे एक और ई डालूंगा, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल संगीता, that is her complete name, so this is also not available. Then maybe you can also try some number, you see, for example, like, this is not available. Maybe for example this is available, for example Sangeeta business. Okay, so she's like, okay, create this username, this is something I'm okay with. ठीक है, तो आपका नाम भी हो सकता है, अल्फाबेट भी आप कोई नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट कीप इट सिंपल क्रिस्प, जो आपको याद रहे। ओके, नाउ माय प्रोफाइल पिक्चर इज सेट, मेरा पेज का नाम सेट है, मेरा यूजर नेम भी सेट हो गया। नाउ आई विल कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज ऐड बटन, और यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड कॉल टू एक्शन बटन। एंड टू हैव अ राइट कॉल टू एक्शन बटन, जो सेंड मैसेज है, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट यू पे क्लिक करूंगा, उसके बाद आई क्लिक ऑन सेंड मैसेज, एंड देन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड हियर आई विल क्लिक ऑन मैसेंजर, एंड यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा। My call to action button is set as well. Now अभी cover image pending है, right? Now the thing is that for example जो मेरे पास sample cover है, आप slide show, picture, video सब कुछ use कर सकते हो, तो यहाँ पे मेरे पास upload है for example this picture, the really candid picture with a laptop, and मैं इसको as a cover image use करना चाहता हूँ, so I can do it like this as well, okay? But होता क्या है, कल को जब आप boost post करते हो, once you start promoting your page, once you start doing advertisements, lot of the people, there are just handful of people जो आपको directly reply करते हैं आपके ad पे, आपको डिटेल भेजते हैं, but जो careful lot होते हैं, lot of people what they do is they will click on to the page link और वो आपके पेज पे आते हैं पहले। So that's why like it's very important कि मेरा पेज अच्छी से सेटअप हो, about section is complete, nice profile picture, nice cover image, और वहां पे कंटेंट भी अच्छा जा रहा है। इससे क्या होगा, मेरा जो प्रोस्पेक्टिंग है वो हमेशा बेटर रहेगा। सो आई कैन यूज दिस कवर इमेज विच इज परफेक्टली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा बेटर बना सकता हूँ। एंड इन ऑर्डर टू मेक इट लाइक रियली रियली बेटर, व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ पे मैं जाऊंगा कैनवा में। ओके, लास्ट टाइम भी मैंने आपको कैनवा पे ट्रेनिंग दी थी, तो क्रिएट ए डिजाइन, तो आपको किस तरीके का डिजाइन चाहिए, मैं यहाँ पे कैनवा में सर्च करूंगा कि मुझे फेसबुक कवर बनाना है। ओके, तो फेसबुक कवर, ओके, नाउ फेसबुक कवर में देखो आप, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल आई लाइक दिस वन। ओके, तो मैंने इसको चूज किया, दीज आर ऑल फ्री टेम्पलेट्स, कुछ टेम्पलेट पेड भी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू अपलोड्स, और जो मेरी इमेज है दिस वन, इसको मैं कैनवा में अपलोड करूंगा, और फिर इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा। ओके, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट था इसको मैं चेंज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई विल, संगीता मॉम ट्रैवलर, ओके, ये मैंने सैंपल बनाया। नाउ फॉर एग्जांपल इन दिस पिक्चर व्हाट आई एम डूइंग इज दैट, मैंने बस कैनवा में एक सैंपल सा डिजाइन लिया और थोड़ा सा मैंने अपनी पिक्चर में फिल्टर डाल दिया। अब यहाँ पे मैं अपना नाम भी डाल रहा हूँ और लोगों को बता भी रहा हूँ कि मैं कोच हूँ, मैं एक मॉम हूँ और मैं एक ट्रैवलर हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल डाउनलोड दिस इमेज इन द PNG फॉर्मेट। ओके, इसको मैंने डाउनलोड किया। अब मैं अपने पेज में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूंगा, सो आई विल ऐड माय कवर इमेज। ओके,
I'll go to upload. यहाँ से मैं आप डाउनलोड जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ, राइट? सो दिस वन. Okay. Now I'll save this cover image. Now the benefit of this cover is कि ये exactly same है, लेकिन जब लोग इस पे आ जाएंगे तो उनको डायरेक्टली यहाँ से भी मेरा नाम दिखता है. They get to see what I am doing primarily. मैं एक कोच हूँ, मैं एक मॉम हूँ, मैं एक ट्रैवलर हूँ, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, right? So I'm giving a people reason, if they are interested in my business, they can directly call me. यहाँ से मेरा मोबाइल नंबर ट्रैक करके या तो मुझे कॉल करेंगे या मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे. Okay. So my page is all set. लेकिन अभी मुझे लास्ट चीज करनी है अपने पेज में, जो कि है अबाउट सेक्शन. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अबाउट सेक्शन में आपको क्या करना है? दी अगर आपको अपनी पेज की कैटेगरी चेंज करनी है, वो यहां से हो जाएगी. आपको यूजर नेम चेंज करना है, वो यहां से हो जाएगा. आपको अपना नाम चेंज करना है, वो यहां से हो जाएगा. लेकिन आइडियली एक बार हो जाएगा. नाम आपका बार बार चेंज नहीं होता. कैटेगरी आप कभी भी चेंज कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट यू चेंज योर कैटेगरी. यूजर नेम अगेन एक बार सेट हो गया, जस्ट कीप द सेम यूजर नेम एंड सेम फॉर द पेज नेम एज वेल. बट द ओनली थिंग इज दैट कैटेगरी और यूजर नेम को आप कभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन पेज नाम आप बार बार चेंज नहीं कर सकते. यू हैव लिमिटेशंस, तो बी केयरफुल विद द पेज नेम यू चूज. देन कुछ चीजें हैं. एड स्टार्ट डेट. आपने ये बिजनेस कब शुरू किया था? तो फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड दिस बिजनेस इन ईयर 2018 इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑन, जो भी आपको टेंटेटिव तारीख याद है, नॉट नेसेसरी एग्जैक्ट द सेम थिंग. ओके. अपना फोन नंबर दे दो, आप अपनी ईमेल आईडी दे दो. आप अगर आपके पास वेबसाइट है, मेंशन दैट एज वेल. और यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम, अपना यूट्यूब और अपने व्हाट्सएप को भी दिखा सकते हैं. तो जो भी आपकी इंस्टाग्राम की हैंडल है, जो भी आपका यूट्यूब पे चैनल नेम है, और जो भी आप मोबाइल नंबर यूज करते हो व्हाट्सएप के लिए, तो आप उन चीजों को यहाँ पे डिस्प्ले करके इस पे सेव करोगे, तो वो चीज भी यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा. देन एडिट अबाउट. ना आप देख रहे हो, जैसे मैंने कहा था कमलजीत के पेज में वी हैड द ऑप्शन टू एडिट बायोग्राफी, अवार्ड्स. वो धीरे धीरे चीजें रिमूव हो रही हैं. व्हाई? बिकॉज थोड़ा सा चेंज आने वाला है. बट अभी जो आपको डिटेल दिख रही है वो आप ऐड कर दो. तो अबाउट में आपको क्या लिखना है? सी अबाउट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी जेनेरिक कि अगर मेरा जो अबाउट है आपका भी सेम ही होगा. नहीं, वी आर डिफरेंट पीपल. सो द काइंड ऑफ अबाउट सेक्शन यू विल हैव, not necessary I need to have the same about. So Sangeeta is saying that, hey, I am a mom to two lovely baby girls. Okay. Travel enthusiast. I love traveling. I'm a travel enthusiast and और मुझे कुकिंग अच्छी लगती है. I love cooking new dish. I manage a team of 5,000 एंटरप्रेन्योर्स पैन इंडिया. तो आप देख रहे हो यहाँ पे इज नॉट की लाइक जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका टाइटल गोल्ड डायरेक्टर है, वो डिस्क्रिप्शन में भी गोल्ड डायरेक्टर लिख के भाग जाते हैं अबाउट सेक्शन में. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. यू नीड टू बी ओरिजिनल. यू नीड टू टेल पीपल हु यू आर, हाउ डू यू फील, व्हाट इज दैट यू आर लुकिंग फॉर. तो यहाँ से दोनों चीजें मैट हो रही हैं. सी, आई एम अ मॉम टू टू लवली बेबी गर्ल्स, आई एम अ ट्रैवल एंथुसियास्ट एंड आई लव कुकिंग न्यू डिश, राइट? और साथ में ही आई मैनेज टीम. तो जो भी वुमेन होंगी, they will like it, right? Because they say, okay, like she has two daughters, she loves traveling and she loves cooking. That is what I do primarily as well. और साथ में she's managing a team of 5,000 plus women entrepreneurs. What kind of work does she do, right? So आप यहाँ पे about लिखेंगे. And last thing जो important है वो है story. तो यहाँ पे जब आप स्टोरी पे क्लिक करते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है स्टोरी अपलोड करने का, और यहाँ पे आपको पिक्चर अपलोड करनी है. I'll just choose the same picture again, maybe this one. Or title में for example I will have a really nice title. For example,
यहाँ पे I have a sample story. This is just for reference, okay? मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा that like you know be personal, just try to express your personality, try to express yourself, क्योंकि उसमें फन है. Now my page is complete, okay? आप देख रहे हो मेरे पेज में एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर है. I have a nice cover image. My call to action button is set. My username, my page name is there. My about section is complete. My story is there. It means that I am all set कि मेरे पास एक अच्छा content plan हो and I start posting content onto the page and accordingly मैं जब अपने promote पे जाऊं, how is that I can get more messages, मैं अपने page को कैसे promote करूं, मैं leads कैसे ज्यादा generate कर पाऊं. Then you need a plan for that as well, and you also need to understand certain things. For example, ad center क्या होता है, inbox में मुझे क्या क्या message आ जाएंगी, कहाँ से आ सकती हैं, insights में आपको like you know क्या क्या provisions है Facebook पे, you see. And then of course one more thing here is like publishing tools कि जहाँ पे आपकी leads आ जाएंगी कल को अगर आप lead generation ad चलाते हैं. Now what I will do is I will just do my first post onto the Facebook, okay? And I am uploading a picture. So I'll go to desktop, digital view, online prospecting. Now, for example, there's a group picture I want to post and I want to talk about. So I just will take the picture here. यहाँ पे मैं अपना पहला post कर रहा हूँ. Now this is Sangeeta's first post, okay? And we did this post onto our page. Now what happens here is that जो आपका पेज होता है, आपने खुद देखा होगा जब आप कोई चीज अपने पेज पे पोस्ट करते हो एंड यू स्टार्ट पोस्टिंग द सेम थिंग ऑन टू द प्रोफाइल एज वेल, अपने पेज पे आपको एंगेजमेंट बहुत कम मिलता है, वेरी लेस सेट ऑफ पीपल इंटरेक्ट विद यू. लेकिन प्रोफाइल पे आपको एंगेजमेंट मिलता है, प्रोफाइल पे आपको कमेंट्स मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज योर पेज डज नॉट हैव अ कम्युनिटी येट. आपका नया नया पेज है, देयर आर नो फॉलोवर्स, देयर आर नो लाइक्स, आपका कंटेंट कहां पहुंचेगा? That's why every time you post something on Facebook. Now संगीता का पहला पोस्ट देखो, यहाँ पे she has for example posted a picture with the team during their international conference with Oriflame, and she's like, hello people, I'm Sangeeta, I'm a loving mom and a digital entrepreneur. I've been doing offline business with Oriflame for many years, but lately I've started using digital tools and social media as a tool to promote my business. I realized that this business is very convenient, it's flexible, and it is profitable. And moreover, it allows me to network and meet like-minded people right from the convenience of my home. यानी घर बैठे बैठे I get to find people who are interested in this kind of business. If you are a woman who loves spending time on Facebook, अगर आपको अच्छा लगता है Facebook, Instagram, YouTube पे टाइम स्पेंड करना और आप पर डे 3 से 4 घंटा स्पेंड कर सकते हो ऑनलाइन, I have a very rewarding, very amazing business opportunity for you. आप मुझसे कनेक्ट करो. आप देख रहे हो अभी किसी तक नहीं पहुंचेगा. That is why आपके पास बूस्ट का ऑप्शन आता है. तो बूस्ट पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होता है टर्म्स सबसे पहले जब आप पहली बार करते हैं. उसके बाद एक मैकेनिज्म है कि आप ऑब्जेक्टिव क्या रखना है, ऑडियंस कैसे चूज करनी है, पेमेंट कैसे करना है. ये सारा मैं आपको अगली ट्रेनिंग में सिखा दूंगा विद द प्रॉपर फोकस हाउ टू डू ऑल ऑफ इट. But as of now, that is all from me because हमने already बहुत सारी चीजें डिस्कस करी. So before I close my session, I would just like to mention that you know it's a very very important time that we do things right. We start promoting our business ethically in a right way, and I'll help you to do certain things. But you also need to be enthusiastic and positive about it. और आपको अपने एंड से नई नई चीजें ट्राई करनी है. आपके एएम जो है, जो आपके एएसएम्स हैं, उनको भी हमने डिजिटल पे बहुत हद तक ट्रेन किया है. तो आप अपने क्वेरीज उन तक भी पहुंचा सकते हैं और आप जो भी आपकी यूटिलिटीज हैंडल करते हैं
तो आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं, टेलिंग दैट हे आई क्रिएटेड दिस फेसबुक पेज, आप प्लीज एक बार इसको देख लो. और यू कैन ऑल्सो लाइक यू नो मे बी सेंड कंटेंट रिकमेंडेशन. जैसे मैंने अभी पोस्ट किया, ये सैंपल पोस्ट है. यू कैन डू better post, you can do brilliant post, and you are already good with content. Most of you is all about कि आप कैसे इन चीजों को प्रमोट करोगे आज के टाइम में. Okay, so that's all from me for today. For the month of April मेरा ट्रेनिंग्स का एक कैलेंडर आएगा जो मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगा. जो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पे भी कैलेंडर अपडेट होगा. और इस बार कॉस्ट मीटिंग में भी आपको ट्रेनिंग्स का कैलेंडर मिलेगा. So you will get to know about all the digital and online trainings which I'll be doing for the month of April. कुछ trainings repeat भी होंगी but which is very important. So आप उन trainings को भी attend कर सकते हैं. Okay. Now I am just closing the session, and if there are any questions, so I have some time, so I'll just take some of the questions. Okay. Thank you so much for being here, and please take care of yourself and be safe and take care of your loved ones as well. Thank you so much, guys.